Rashid here with BS Zoology and BS Chemistry 4th semester, subject Animal Form and Function 1. Today our lecture number 27. There is the last lecture, last discussion with BS Zoology and BS Chemistry 4th semester, last chapter, that is chapter number 4, descriptive embryology is discussed here. The remaining topics of this chapter are vertebrates, embryology, amphibian embryology and avian embryology. So what is the difference between vertebrate embryology, vertebrates की embryology, embryo development में क्या फ़र्क है, amphibian की embryology कैसे होती है, वो कैसे वर्क करती है, कौन से functions होते हैं, कौन से organs की development होती है, and avian embryology, what is the difference. Both of three topics are very important. Write a note on a vertebrates embryology, vertebrates embryonic development. Write a note on amphibian embryology, amphibian embryonic development, and similarly write a note on avian birds embryology, avian birds embryonic development. So these are very important long question. You have to prepare this topic from the book, that is Principle in Animal Life 2 paper A. If you already have purchased the book, that is Miller Harley, three topics will be covered from the book Miller and Harley, but these 4 chapters, that is descriptive embryology, you have to prepare from this book, that is the Principle in Animal Life paper A. If already you have this book, so you don't need to worry and prepare these topics from descriptive embryology chapter number 4, last chapter topics you have to prepare from this book. If you don't have, then you have to purchase this book, Principle in Animal Life paper A. Abdul Qayyum Khan, that is the writer, Ilmi Kitab Khana. So you have to prepare this book, that is Principle in Animal Life paper A. So now we have to start vertebrate embryology. वर्टिब्रेट एम्ब्रियोलॉजी क्या है कि वर्टिब्रेट्स में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है. द मेजर डिफरेंस बिटवीन वर्टिब्रेट, एम्फीबियन एंड बर्ड्स एम्ब्रियोलॉजी इज़ दैट the difference of vertebrate embryology from echinoderm embryology and other amphibians and birds embryology is that vertebrate embryology is longer developmental periods. अब जो vertebrates की embryology है, as you know vertebrates are complex organisms having vertebral column. So इनमें जो embryology होती है उसके longer periods होते हैं. लॉन्गर पीरियड्स में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की डेवलपमेंट होती है, डिफरेंट ऑर्गन्स की फॉर्मेशंस होती है. अब इसमें कौन से स्टेप्स होते हैं वर्टिब्रेट की एम्ब्रियोलॉजी में, कॉर्डेड बॉडी प्लान्स में कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स की फॉर्मेशन होती है. डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड बनता है वर्टिब्रेट की एम्ब्रियोलॉजी में. डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड इनकी नेक पोर्शन से स्टार्ट होकर एनस रीजन तक जाता है. लाइक वर्टिब्रल कॉलम एक बारीक सी नोटोकॉर्ड होती है. डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड की फॉर्मेशन होती है, नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन होती है. नोटोकॉर्ड बिल्कुल इसी तरह एक वर्टिब्रल कॉलम की तरह एक लंबी लाइन होती है जो इनके हेड रीजन से स्टार्ट होती है. फेरेंजियल स्लिट्स आर पाउचेज एंड पोस्ट एनाटल डिफरेंट पाउचेज बनती हैं, कैविटीज़ बनती हैं एंड इन टेल की फॉर्मेशन होती है. अब कॉर्डेट्स में नर्वस सिस्टम डिवेलप्स फ्रॉम एक्टोडर्म. अब ये जो वर्टिब्रेट्स हैं इनमें जो कॉर्डेट बॉडी प्लान्स हैं, अब जो नर्वस सिस्टम है ये कहाँ से डिवेल्प होता है, एक्टोडर्म. यू हैव टू नो अबाउट 3 बॉडी कैविटीज़, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. जो आउटर लेयर होती है इसको क्या कहते हैं, एक्टोडर्म, मिडिल लेयर को मेसोडर्म और इंटरनल लेयर को एंडोडर्म. सो जो नर्वस सिस्टम है वर्टिब्रेट्स में, कॉर्डेट्स में, उसकी डेवलपमेंट कहाँ से होती है, एक्टोडर्म से. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ. एंड इट डॉर्सल एंड ट्यूबुलर. The notochord is primary axial structures in all chordates. Embryo is formed. So next, all chordate possesses pharyngeal slits. इसमें different slits की formation होती है, और pouches and a post anal tail is formed in the life history of vertebrates embryology and chordates embryology. Next, आज का जो हमारा second topic है, that is amphibian embryology. Amphibians are those living organisms that lives in waters. Most amphibians lay eggs in watery environment. वाटर environment में moist habitat में अपने eggs को lay करते हैं and eggs are fertilized as the female release them. जैसे ही एक फीमेल है जो eggs को रिलीज़ करती है तो sperm की फ्यूजन से eggs fertilized हो जाते हैं. The dark pigmented of animal poles. So there are the 2 poles of an egg. वेजिटल पोल होता है और एक एनिमल पोल होता है. एनिमल पोल में जो योक है उसकी क्वांटिटी जो है
द डार्क पिगमेंट ऑफ एनिमल पोल आल्सो ऑब्जॉर्व हीट फ्रॉम द सन एंड द वार्मिंग में प्रोमोट डेवलपमेंट। अब इसके दो पोर्शन होते हैं, वेजिटल पोल एंड एनिमल पोल। अब एनिमल पोल में योग की क्वांटिटी कम होती है और जो वेजिटल पोल है, वेजिटल पार्ट है, उसमें योग की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अब जो इसके डार्क पिगमेंटेड हैं, एनिमल पोल में जो डार्क पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, हीट को ऑब्जॉर्ब करते हैं और इसको वार्म करते हैं और इस तरह डेवलपमेंट का प्रोसीजर जो है वो फास्ट होता है। नेक्स्ट, इनिशियल क्लीवेज में क्या होता है, जब स्टार्ट में एक सेल की डिवीजन स्टार्ट होती है, इनिशियल क्लीवेज होती है, तो कौन से स्टेप्स होते हैं, किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ योग इन द वेजिटल एंड। वेजिटल एंड में योग की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सो क्लीवेज आर स्लोअर देन इन एनिमल एंड। अब एनिमल एंड में योग की क्वांटिटी कम होती है, सो योग की बहुत जल्द डिवीजन हो जाती है, सो उसमें क्लीवेज जो है वो फास्टर होती है, जबकि वेजिटल एंड में योग की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, अनइक्वल डिवीजन होती है, सो वेजिटल एंड में जो क्लीवेज है, जो डिवीजन का प्रोसीजर है वो स्लो होता है, वो थोड़ा आहिस्ता रेट पे होता है। नेक्स्ट स्टेप्स कौन से हैं, एम्फीबियन की एम्ब्रियोलॉजी में मोरूला की फॉर्मेशन होती है, जैसे ही एम्ब्रियो बन गए, एम्ब्रियो में फर्दर डिवीजन होगी तो मोरूला एक कैविटी फॉर्मेशन होगी, मेरूला फॉर्मेशन, देन ब्लास्टोसील कैविटी बनती है, ब्लास्टुला फॉर्मेशन, गैस्ट्रुलेशन होती है जिसमें फर्दर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं एंड कैविटी बनती है जिसको क्या कहते हैं, इंटरनल कैविटी, मिडल कैविटी, दैट इज़ मेसोडर्म फॉर्मेशन, न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। ये जो मोरूला फॉर्मेशन, ब्लास्टुला फॉर्मेशन, गैस्ट्रुलेशन, मेसोडर्म फॉर्मेशन एंड न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन, दीज आर ऑल द स्टेप्स occurred fulfilled during the amphibian embryology. So last topic of discussion, this last lecture discussion, that is avian embryology. Avian mean birds. अब birds में embryo की फॉर्मेशन कैसे होती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंट में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स बनते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है, फेट ऑफ मेसोडर्म। अब यहाँ पे भी फेट मीन डेस्टिनी, मुकद्दर, लास्ट जो रिज़ल्ट होता है उसमें मेसोडर्म की फॉर्मेशन होती है। एम्फीबियन की एम्ब्रियोलॉजी में आपने देखा है कि लास्ट पे किसकी फॉर्मेशन होती है, मेसोडर्म फॉर्मेशन, तो बर्ड्स में भी मेसोडर्म की फॉर्मेशन होती है। The embryology development in birds is called avian embryology post fertilization event. पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब है अगर एग और स्पर्म की फ्यूजन हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई है, तो उसके बाद के जो इवेंट्स हैं वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हैं। और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन से होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन से पहले स्टेप्स होते हैं। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद फर्दर जो स्टेप्स हो रहे हैं, फर्दर जो डिवीजन्स हो रही हैं, फर्दर जो ऑर्गन्स की फॉर्मेशन हो रही है, इसको क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। विटिलाइन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होती है जैसे ही स्पर्म्स एग्स के साथ फ्यूज होते हैं, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट बनने के बाद एक बारीक सी लेयर झिल्ली बन जाती है जो मेम्ब्रेन होती है, प्रोटीन होती है, जिसको क्या कहते हैं, विटिलाइन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। ये एग को कवर कर लेती है, इसको इसके सरफेस एरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सो दैट एम्ब्रियो जो है उसकी डिजनरेशन ना हो जाए, एम्ब्रियो डैमेज ना हो जाए, मिसकैरेजेस ना हो जाए, एम्ब्रियो जो है वो वेस्ट ना हो जाए, उसकी फर्दर ग्रोथ हो, उसकी फर्दर डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट, एग वाइट एंड एल्ब्यूमिन। अब एग वाइट में अब अगर आप किसी भी एग को जब ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसमें दो पोर्शन होते हैं। एक वो येलोइश होती है जिसको कहते हैं योक, अंडे की जर्दी, और दूसरा वाइट लिक्विड सा होता है। अब जो वाइट होता है उसको क्या कहते हैं, वाटर एरिया, एंड प्रोटीन जिसको क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अब जो योकी एरिया है, जर्दी वाला एरिया, उसको क्या कहते हैं, वो प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स। अब जो वाइट एरिया लिक्विड टाइप होता है वो क्या है, लिपिड्स। शेल होता है, इसमें एक कवर होता है, द शेल इज़ इम्प्रेजनेटेड विद प्रोटीन। इसमें प्रोटीन जो है पेनिट्रेट हुई होती हैं, धुंसी होती हैं। अब प्रोटीन से क्या होता है कि इसके लेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं, 40 to 50 माइक्रोमीटर उन पोर्स का डायमीटर होता है। और ये किस पर्पज़ के लिए होता है, डिफरेंट गैसेस के एक्सचेंज के लिए, ताकि वो जो एम्ब्रियो जाइगोट बन गया है उसको डिफरेंट गैसेस मिलें और वो उसमें बनने वाले बेबी जो है, चिक है, बर्ड्स में जो बेबी की फॉर्मेशन हो रही है उसकी ग्रोथ हो, उसकी डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट, हैचिंग। अब हैचिंग क्या होती है, जैसे ही एक एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगी, उसकी ग्रोथ होगी, तो अब उसमें जो चिक्स बन गए हैं वो क्या करते हैं, अपनी बीक से एग के शेल को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। छोटा सा जब सुराख बन जाता है तो उस सुराख के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, वो सांस लेते हैं। क्या होता है, द चिक्स पेनिट्रेट द एयर पॉकेट्स विद एयर बीक, अपनी चूंच के साथ उसको ब्रेक करते हैं। इनके लंग्स जो है इन्फ्लेट करते हैं, जैसे लंग्स को फ्रेश एयर मिलेगी तो वो इन्फ्लेट कर जाएंगे, फूल जाएंगे, और इसी तरह इनकी ब्रीथिंग का जो प्रोसीजर है वो कंटिन्यूस रहेगा और एयर जो है वो फ्रेश एयर पेनिट्रेट करेगी।
So I will repeat it again. Last topic, last lecture, last discussion with BS Zoology and BS Chemistry 4th semester, subject Animal Form and Function 1, lecture number 27, last chapter descriptive embryology. इसके last topics पे आज हमने बात करनी है vertebrate embryology, amphibian embryology and birds embryology. Vertebrates ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें वर्टिबल कॉलम होता है, रीढ़ की हड्डी होती है. ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है. जब इनमें एग्स बनते हैं, फीमेल में एग्स जब स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं तो फर्दर कौन सी डिवीजन्स होती हैं, फर्दर कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसे न्यू बोर्न बेबी की फॉर्मेशन होती हैं, ये सारा हमने डिस्कस करना है वर्टिब्रेट एम्ब्रियोलॉजी में. The difference of vertebrate embryology from echinoderms embryology is that vertebrate embryology is longer developmental period. अब इसमें longer periods होते हैं जिसमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की डेवलपमेंट होती है, नर्वस सिस्टम बनता है, हार्ट्स की फॉर्मेशन होती है, किडनी एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनते हैं. ये सारे जो पीरियड्स होते हैं ये लॉन्गर पीरियड्स होते हैं. अब कॉर्डेड बॉडी प्लान में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन सी फॉर्मेशन होती हैं ऑर्गन्स की. डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड बनता है, नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन होती है, फ्रंजियल स्लिट पाउचेस बनती है, पोस्ट एनल टेल की फॉर्मेशन होती है. कॉर्डेट का जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टोडर्म से डिवेलप होता है और नोटोकॉर्ड में प्राइमरी एक्सियल स्ट्रक्चर्स होती हैं, दैट इज़ कॉर्डेट्स एम्ब्रियो. और जितनी भी कॉर्डेट्स में फ्रंजियल स्लिट्स हैं, पाउचेस हैं, इसमें क्या होती है, लास्ट में एक टेल की फॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन एम्फीबियन एम्ब्रियोलॉजी. एम्फीबियंस में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट क्या होती है, एम्ब्रियो में डिफरेंट कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन से बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है. मोस्ट एम्फीबियंस ले एग्स इन वाटर. मॉइस्ट हैबिटेट में, वाटर इन्वायरमेंट में जब वो एग्स ले करते हैं तो स्पर्म आके क्या करता है, उसके साथ फ्यूज़ करता है. जब वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो देन क्या होता है कि इसके डार्क पिगमेंटेड एरिया में पिगमेंट्स होते हैं जो कि सन को ऑब्जॉर्ब करते हैं, सन से हीट को ऑब्जॉर्ब करते हैं. हीट जो है वो क्या करती है, डेवलपमेंट के प्रोसीजर जो हैं वो फास्टली जो है फुलफिल होते हैं. नेक्स्ट इनिशियल क्लीवेज जैसे स्टार्ट होती है तो एग के दो पोल्स होते हैं, एक एनिमल पोल, एक वेजिटल पोल. एनिमल पोल में योग की क्वांटिटी कम होती है जबकि वेजिटल पोल में योग की क्वांटिटी ज़्यादा होती है. ज़्यादा होने की वजह से उसमें जो डिवीजन्स हैं वो अनइक्वल होती हैं और स्लोअर रेट पे होती हैं, जबकि एनिमल पोल में योग की क्वांटिटी कम है, फ़ौरन ही वो योग की डिवीजन्स हो जाती हैं और वो कंप्लीट डिवीजन होती है जिसको क्या कहते हैं, हॉलोब्लास्टिक क्लीवेज. अब इसमें कौन से स्टेप्स होते हैं एम्फीबियन की एम्ब्रियोलॉजी में, मोरूला की फॉर्मेशन होती है, कैविटी फॉर्मेशन, ब्लास्टुलोसील कैविटी फॉर्मेशन, गैस्ट्रुलेशन होता है, मेसोडर्म इंटरनल कैविटी इंटरनल लेयर की फॉर्मेशन होती है, न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन होती है. ये सारे स्टेप्स हैं जो कि एम्फीबियन एम्ब्रियोलॉजी में फुलफिल होते हैं, टेक प्लेस होते हैं. नेक्स्ट लास्ट टॉपिक दैट इज़ एवियन एम्ब्रियोलॉजी, बर्ड्स की एम्ब्रियोलॉजी. अब इसकी फेट क्या है, मेसोडर्म की फॉर्मेशन होती है. मेसोडर्म दैट इज़ द मिडल लेयर. The embryology development in bird is called avian embryology. पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप, ऐसे स्टेप जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद होते हैं, इन स्टेप्स को कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप्स. विटलाइन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है, जैसे ही स्पर्म एग के साथ फ्यूज़ करते हैं फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जायगोट बन जाता है तो एक बारीक सी लेयर बन जाती है, प्रोटीन की लेयर जो एग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम हार्श इन्वायरमेंट. अब एग जब भी आप एग को ब्रेक करते हैं तो उसमें दो पोर्शन होते हैं, एक लिक्विड एरिया होता है और एक येलो कलर की योग होती है जिसको जर्दी कहते हैं. जर्दी क्या है, वो प्रोटीन पोर्शन है, जबकि वाटरी एरिया जो है वो लिपिड्स हैं. नेक्स्ट शेल होता है, एग का शेल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और इस शेल में प्रोटीन की इम्प्रेगनेटेड होती है. इम्प्रेगनेटेड मतलब प्रोटीन उसमें धुसी हुई होती है ताकि उसको हार्ड कवर एरिया प्रोवाइड करें, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें. और इस कवर में 40 to 50 माइक्रोमीटर्स के डायमीटर के छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है ताकि इंटरनल एम्ब्रियो जो है उसकी ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो. लास्ट पे क्या हैचिंग है, जैसे ही एग्स जो हैं वो फर्टिलाइज होते हैं, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है और डिफरेंट क्लीवेज के स्टेप्स होते हैं, तो लास्ट पे जो चिक्स की फॉर्मेशन होती है. अब चिक जो है वो एग को अपनी बीक से ब्रेक करेगा, छोटा सा सुराख बन जाएगा, उस सुराख से गैसेस का एक्सचेंज होगा. जैसे ही फ्रेश एयर अंदर आएगी तो चिक का जो लंग्स हैं वो फूल जाएंगे, इन्फ्लेटेड हो जाएंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ब्रीथिंग के प्रोसीजर को फुलफ़िल करेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर lecture discussion with BS Zoology and BS Chemistry 4th semester, subject Animal Form and Function 1. इसके टोटल 4 चैप्टर्स से. आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. इफ़ यू फील एनी क्वेरी, अगर आपको किसी भी चैप्टर का किसी भी पॉइंट में किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जूम में मीटिंग में पूछ सकते हैं या फिर आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं. सो बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर. लर्न दीज टॉपिक्स very attentively, and if you feel any query you can ask question. See you again. Allah Hafiz. Take care of you.